लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections Lok Nirnay 2024. In this program, we'll bring you election-related developments, various updates, and analysis of general and assembly elections 2024. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं चुनाव से संबंधित ताजा समाचार, स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं अपने विशेषज्ञ को और उसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ हम करते हैं बातचीत और ताजा स्थितियों के बारे में आपको देते हैं जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं चर्चा के लिए राजनीतिक मामलों के जाने माने विश्लेषक रोशन गौड़। रोशन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित। The headlines: Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi holds election rallies in Nevada, Bihar and Jalpaiguri in West Bengal. In West Bengal, Congress releases a list of 3 candidates for Lok Sabha polls. An election commission initiates several innovative campaigns on social media platforms to engage young and urban voters. वरिष्ठ भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी रैलियां की। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की और चुनाव आयोग ने युवा और शहरी मतदाताओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अभिनव अभियान शुरू किए। Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting at Jhumur in Jalpaiguri, West Bengal. He said the central government is committed for the development of North Bengal. He said that the ruling TMC has deprived the people of the state by not implementing various welfare schemes. Mr. Modi said that the Indy Alliance bloc has no vision to lead the country. He said the G20 was organized to attract more tourists and investment in North Bengal. He assured the people that more investment will come if the BJP comes to power. Mr. Modi expressed anguish at the loss of lives in the tornado at Barnish of Jalpaiguri last Sunday. इससे पहले मोदी ने बिहार में नवादा के कुंती नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के पास स्पष्ट दृष्टिकोण तथा विश्वसनीयता का अभाव है और उनका आपसी मतभेद सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता उनकी गारंटी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार को बढ़ावा और विकास को बाधित करना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से अब तक किए गए सभी वादों को पूरा किया है। The Congress today released a list of 3 candidates for the Lok Sabha polls. The party has fielded Pradeep Biswas from Bangaon, Azhar Malik from Uluberia, and Dr. Papia Chakrabarti in Ghatal in West Bengal. The party also announced Anju Begum as its candidate for the by-poll to Bhaga Bongola Assembly constituency in West Bengal. उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पुरुलिया में एक जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपने धर्म का अनुसरण करने की अनुमति नहीं देगी। The Election Commission has said that over 73,000 applications have been received on the Suvidha portal in just 20 days since the announcement of the general elections, recognizing the importance of the election campaign period where parties and candidates engage in activities to reach out to voters. The Suvidha portal caters to a diverse range of permissions requests on the first in, first out principle. It caters to permissions for organizing rallies, opening temporary party offices, door-to-door canvassing, video vans, helicopters, obtaining vehicle permits and distributing pamphlets. The Commission said more than 44,600 requests have been approved and the first-in, first-out principle is ensuring a level playing field for parties and candidates. Its Suvidha portal also promotes transparency in election management. The poll body said that nearly 11,200 requests had been rejected, which is 15% of the total requests received, and over 10,000 applications were cancelled as were invalid or duplicate. निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई नवाचारी और अनोखे अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग
टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसे अभियानों के माध्यम से सम्मोहक विषयों, लोकप्रिय ECI आइकॉन और जेन जेड सामग्री के साथ सहयोग को शामिल करके संदेशपरक रणनीति अपना रहा है। निर्वाचन आयोग के टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में उभरकर सामने आई शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दे को भी संबोधित करता है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पर गलत सूचना और फर्जी समाचार को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत भी की है। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी जानकारी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल और लिंक्डइन सहित बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है। चर्चा की शुरुआत रोशन जी इसी यानी जो हमारी अंत की चर्चा है वहीं से करना चाहेंगे कि जो ताज़ा पहल की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से 20 दिनों में ही कह लें कि 73,000 के आसपास, उससे अधिक सुविधा जो पोर्टल है उस पर आ गए हैं, लोगों की मांगें, लोगों इनका निराकरण किस रूप में हो रहा है और कुल मिलाकर ये जो पहल है वह क्या रूप आने वाले दिनों में ले सकती है? देखिए, अगर आपको याद हो कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की जी, तो लोकसभा जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि अधिकतम जो देश के हमारे मतदाता हैं वो कैसे उनको घर से निकाला जाए, वो वोट डालें। और तमाम तरह के उन्होंने अभियान चलाए, प्रयास किए और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनको उन्होंने अपना उन्होंने आइकॉन बनाया। और अब जो उन्होंने कुछ जो सुविधा पोर्टल पे उन्होंने लोगों से शिकायतें मांगी या उन्होंने जो सुझाव मांगे थे, अब उन्होंने एक्सिट टीमें बना दी हैं कि उन शिकायतों का निवारण कम से कम जो उन्होंने टारगेट रखा था कि उसको 100 घंटे के अंदर पूरा करना है जी, यानी 100 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों को रिप्लाई चला जाना है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। तो मुझे लगता है कि इससे जो इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट लोगों से बात कर रहा है और लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कह रहा है कि आप मतदान करो, क्योंकि हमारा जो वोट परसेंटेज है लगभग 67-68% रहता है जी, जी। उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको ऊपर किया जाए, जो नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा 90% तक जाता है, पूरे देश में कैसे चला जाए, इसके तरफ कोशिश कर रहा है। एक और खबर हम श्रोताओं आपको देना चाहेंगे। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी धर्मेश S गंगवार को सामान्य और भूतपूर्व IPS अधिकारी NK मिश्रा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भेजा गया है। Roshan ji, continuing with our earlier discussion of the lower voter turnout and the youth not taking that much of interest which it should have taken. And also recently the Election Commission organized a conference in various districts, especially in Bihar and Uttar Pradesh, with the municipal commissioners and also the district electoral officers and all, to take up a stand, to mobilize the crowd and also to make aware the voters of their right to exercise, to come out in large numbers and to vote. How do you see this? मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा है, और जो वो प्रयास कर रहा है, जो कॉन्फ्रेंस जैसा आपने बात की कॉन्फ्रेंसों की, और जो उन्होंने अपने साथ चाहे क्रिकेटर हों या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों उनको जोड़ा, उससे जो हमारा युवा वर्ग है वो उससे जरूर जुड़ रहा है। जो हमारा यूथ है वो बाहर निकल रहा है, और इस बार आपने देखा होगा कि जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया पर आ रहा है और वो चर्चा कर रहा है कि किसको वोट डालना है, नहीं डालना है, क्यों डालना है, हमारे इश्यूज़ क्या हैं, वो अपनी बातें कह रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे जो एक इलेक्शन कमीशन का पूरा जो प्रयास है, इस प्रयास का फ़ायदा मिलने वाला है। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा किया है। जो लोग जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं उनकी लिस्ट अलग बनाई है, और जो 1 अप्रैल को 18 साल होने वाले हैं उनकी लिस्ट अलग बनाई है। तो जो 1 अप्रैल का भी हो गए हैं 18 साल के, उनको भी इन्फॉर्मेशन चली गई है कि आप अपना वोटर आई कार्ड बनाइए, ताकि आप 19 अप्रैल को जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें आप वोट डाल सकें। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, और इससे जो हमारा वोट परसेंटेज है वो ज़रूर बढ़ेगा। श्रोताओं, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपके घर परिवार में 18 वर्ष की आयु पहुँच गए हैं जो बच्चे, और 1 अप्रैल तक हो चुके हैं 18 साल के, उन्हें
यदि बच्चे नहीं दिलचस्पी ले रहे तो अभिभावक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे आगे बढ़ाएं. In fact, Manoj ji, turning 18 and you are the one initiative which the Election Commission has taken. This is really very heartening, and I believe that this event, the turning 18 and you are the one, these kind of initiatives will definitely go a long way in mobilizing the young crowd, especially the ones who are turning 18 this time, to come out in large numbers. And even as we speak this, you must have heard, listeners, that during the election season, social media is flooded with people flaunting selfies under the title "I voted" and showing their index fingers marked with the indelible ink. This tiny mark, a symbol of democratic participation, holds a great role in ensuring the integrity of the electoral process. Now let's listen to our correspondent's special story to know more about it. Some 7 decades ago, when India just started having elections, there emerged a huge challenge. Some people were trying to cheat by voting more than once. The Election Commission scrambled for an immediate solution. They collaborated with the Union Law Ministry, National Physical Laboratory and National Research Development Corporation. Together, they came up with a solution that a public sector undertaking, Mysore Paints and Varnishes Limited or MPVL, which was established before independence, will manufacture the voters' ink. Initially, this ink was only used for big elections like parliamentary and assembly elections. However, as time passed, its use expanded to include municipal bodies and other smaller elections. MPVL claims that their indelible ink is of high quality and dries quickly, in less than 40 seconds. Even if the ink touches the skin for just 1 second, it leaves a lasting mark. The key ingredient that makes this ink indelible is silver nitrate, which can be present in concentrations ranging from 7% to 25% depending on its intended use. This ink is not just a mark, it's a symbol of democracy and shows how important it is to keep elections fair. और लिए चलते हैं आपको राजस्थान. वहाँ बीकानेर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में क्या सब ताज़ा स्थितियां हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं. बीकानेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र तथा श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर इस लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया है. इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,48,000 से ज्यादा मतदाता हैं. आजादी के बाद से बीकानेर में अब तक 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा तथा 6 बार निर्दलीय तथा अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जीते हैं. 1957 से 1971 तक इस सीट से बीकानेर राज परिवार के सदस्य करणी सिंह 4 बार निर्दलीय सांसद निर्वाचित हुए. फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने 2004 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर इस निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व किया. 2009 में परिसीमन के बाद यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई. तब से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इस बार इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. भाजपा ने एक बार फिर अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया है. उन्हें मुख्य चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल से मिल रही है, जो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस इस बार भाजपा के विजयी रथ को रोक पाने में सफल होती है या नहीं. Even as our correspondent on a parting note say that it will be interesting to see this time that how the dispensation fares this time. So your views, Roshan ji, on the Rajasthan elections this time, would the current dispensation would be able to hold on to its own strength? देखिए, हमें राजस्थान को ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती जी. और जब हमने विधानसभा में देखा था, पिछली बार कांग्रेस आई थी और इस बार भी जो माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि शायद अशोक गहलोत सरकार वापस आ सकती है, ऐसा एक माहौल सा बना था. लेकिन जब विधानसभा के रिजल्ट आए तो तस्वीर कुछ और थी, यानी उम्मीद के एकदम विपरीत. तो उस हिसाब से लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी कांटे का होगा. और जो वहाँ अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में थे और वहाँ उन्होंने अपना जो न्याय पत्र है वो उन्होंने वहाँ लॉन्च किया, दिल्ली के अलावा वहाँ भी. तो ऐसा लगता है कि जो राजस्थान की भूमि है
वहाँ कांग्रेस कुछ तलाश कर रही है कि जो बीजेपी के 25 के 25 सीटें हैं उसमें से कितना वो खींच सकती हैं. This is a very interesting point that you make, Roshan ji, that the BJP chose Rajasthan to come up with its election manifesto. So this seems to send a message to the larger electorate that we are serious about the state and we need to make inroads in it. Your views on that? हाँ, असल में क्या है ना कि उनको ऐसा लग रहा है, अशोक गहलोत और उनकी जो साथी लोग हैं, कि राजस्थान में संभावनाएं उनको दिख रही हैं. और इसलिए आपने देखा होगा कि जब सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने राजस्थान ही चुना, यानी जयपुर में वो रहती थी, तो उनको कुछ ना कुछ उम्मीद नज़र वहाँ आ रही है, इसलिए वो फोकस कर रहे हैं, बार बार राजस्थान जा रहे हैं. और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी तो वो भी राजस्थान होते हुए गई थी, तो बड़ा उनको एक समर्थन सा मिला से हम कितनी सीटें ले सकते हैं. तो मुझे लगता है ये तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है. श्रोताओं, हमारे साथ अभी राजस्थान के बारे में जो जानकारी दे रहे थे वो हमारे संवाददाता थे बीकानेर से जितेंद्र द्विवेदी. और राजस्थान के बारे में जानकारी हम आपको ये दें कि 2 चरणों में वहाँ मतदान होना है. 19 अप्रैल को 12 सीटों के लिए और 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए. और अब हम मणिपुर. And now moving on to the northeastern state of Manipur, we will take the constituency of Inner Manipur now, wherein we are joined by our correspondent JJ Thokcham. The election authority has declared that the voting for the first phase Lok Sabha election in Manipur will be held at 1,404 polling stations, including 85 special polling stations. These special polling stations have been set up for internally displaced voters who are taking shelter at different relief camps and other places due to the ethnic clash in Manipur. In the first phase, poll will be conducted at 47 assembly segments of the states, including 15 assembly segments which are under the Outer Manipur parliamentary constituency. Among the 6 candidates who are in fray for the Inner Manipur Lok Sabha seat, BJP has fielded State Education Minister Thongnaujam Basantakumar as party candidate, when JNU Professor Angomcha Bimol Akoijam is contesting on INC ticket. The National General Secretary of RPI, Athawale, Maheshwar Thongnaujam and 3 independent candidates are also contesting for the seat. Inner Manipur Lok Sabha seat is constituted by 32 assembly segments of Manipur, which are in valley districts. Out of these 32 assembly segments, 21 BJP MLAs, including present Chief Minister N. Biren Singh, 7 cabinet ministers, and Speaker of Manipur Legislative Assembly, were elected in the state assembly election held in 2022, while Congress has got only 3 MLA seats. Although the poll dates for the first phase Lok Sabha election is slated on 12th day ahead from today, the state has witnessed a different election look this time. No major political rallies and meetings have taken place till date. However, candidates and political parties are campaigning door-to-door and street corner meetings are taking place in different places. In spite of all, the election authority has taken up all measures to conduct the polls in a free and fair manner with the maximum participation of voters in the upcoming Lok Sabha poll in Manipur. श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता जेजे थॉक्चम मणिपुर से और हमने जानकारी ली. यहाँ पर आपको लिए चलना चाहेंगे मणिपुर में जो ताज़ा स्थितियाँ रही थी पिछले कुछ महीनों से, कह लें, उनका क्या असर पड़ सकता है इस बार के चुनाव पर? क्या लग रहा है आपको? देखिए, असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय जो आंदोलन चला और वहाँ जो 2 समुदायों का बीच का जो एक झगड़ा था, वो झगड़ा मुझे लगता है कि अभी भी उसमें वो भी मुद्दा जिंदा है, बना हुआ है. लेकिन ये जो इनर मणिपुर वाली सीट है, इस क्षेत्र में शायद उतना इसका असर कम रहेगा जितना कि आउटर सीट पर रहेगा. इनर सीट पे हमने देखा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, आर.के. सिंह, उनको इस बार टिकट नहीं मिली है. वो सेंटर में मंत्री भी थे, टिकट बदला गया है, जो वहाँ लोकल मंत्री थे उनको दिया गया है. तो शायद ऐसा लग रहा था कि जो वहाँ जो कुकी समाज के लोग थे, उन्होंने उनका बहुत विरोध किया था, तो शायद उनका विरोध रोकने के लिए टिकट बदला गया है और शांति हो इसकी कोशिश की गई है. तो लेकिन फिर भी जो वहाँ एनआरसी का इशू है वो है. लोग, जो सरकार चाहती है वो एनआरसी हो, लोकल लोग भी चाहते हैं, लेकिन जो कुकी समाज हैं या जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो थोड़ा सा उसका विरोध कर रहे थे. तो कुछ मुद्दे हैं जो स्थानीय हैं, कुछ मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हैं,
वो वहाँ प्रभावी हैं। एक तथ्य वहाँ और हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि वहाँ अभी तक बड़े नेताओं का अभी तक आगमन नहीं हुआ, यानी जो बिग टिकट प्रचार कहते हैं वो नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या आसार लग रहे हैं? वहाँ बड़े नेता वहाँ जाएंगे या स्थानीय लोगों को ही अपनी लड़ाई, यानी कह लें कि अपने चुनाव के लिए संघर्ष करना होगा? मुझे लगता है कि बड़े लीडर भी जाएंगे। असल में वहाँ 2 ही सीटें हैं, तो बड़े लीडर कोशिश करते हैं कि जहाँ उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिलें, तो वो आसपास की सीटें भी देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर में शायद जो राज्य के बड़े लीडर हैं तो वही जाएंगे। श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले 19 अप्रैल को 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा और 26 अप्रैल को आखिरी चरण में 1 सीट के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए। असल में यहाँ थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दें कि मणिपुर की जो 2 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें जो आउटर है वो 2 बार होगा, 2 चरणों में होगा। तो इस बार आपने देखा कि जो 543 सीटें हैं तो 544 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है। तो इसलिए आपको लगता होगा कि 2 चरण एक बार और 1 चरण एक बार। So it will also be held on the 19th of April as well as on the 26th of April. Now in our constituency profile, we move to Mandla in Madhya Pradesh, wherein we are joined in by our correspondent Sanjeev Sharma. मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल मंडला सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बने मंडला संसदीय क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। मंडला लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,97,051 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 10,48,096 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,48,930 है। यहाँ 25 मतदाता थर्ड जेंडर के भी हैं। मंडला सीट से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने कमल सिंह मरावी को टिकट दिया है। आदिवासी बहुल सीट होने के कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी और बसपा के अलावा 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में श्री कुलस्ते ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। मंडला संसदीय क्षेत्र की पहचान प्रदेश सहित देश के बड़े आदिवासी चेहरे और स्थानीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के रूप में भी होती है। श्री कुलस्ते ने जब से लोकसभा का चुनाव लड़ने की शुरुआत की है, तब से मंडला संसदीय क्षेत्र भाजपा का गढ़ बन गया है। मंडला सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, इसलिए यहाँ सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। Sanjeev, hello Sanjeev, can you? जी हाँ, बताइए। Sanjeev, take us through the latest developments in Madhya Pradesh regarding the elections. अब आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज प्रधानमंत्री ने का रोड शो था जबलपुर संसदीय क्षेत्र में, अभी खत्म होने की तरफ है रोड शो। और इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने न केवल मंडला और जबलपुर बल्कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां तक अपनी बात पहुंचाने का एक प्रयास किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोड शो शहीद भगत सिंह चौक से शुरू हुआ था और आदि शंकराचार्य चौक तक करीब 1.25 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। और मध्य प्रदेश में पहला चरण की जो प्रक्रिया है चुनावी पूरी हो चुकी है, दूसरी चरण के लिए भी चल रहा है। कल तक प्रत्याशी अपने नाम विड्रॉ कर सकते हैं जी। और जैसे कि हम पहले अपनी खबरों में बताया कि 93 वैलिड नामांकन पाए गए हैं और 16 करीब कैंसिल हुए थे। कल विड्रॉ होने के बाद पोजीशन क्लियर होगी कि कितने कैंडिडेट सेकंड फेज में बचते हैं। फर्स्ट फेज में जरूर 88 उम्मीदवार तय हो गए हैं, जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और दूसरे चरण में 7 सीटों में मतदान होगा जी। संजीव जी, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार किस रूप में जोर पकड़ रहा है और विभिन्न दलों के जो बड़े नाम हैं, स्थानीय लोग ही मुख्य रूप से आ रहे हैं या बड़े नाम जैसे प्रधानमंत्री वहां गए, इसके अलावा? बिल्कुल, जैसे ये कह सकते हैं कि आज से प्रधानमंत्री ने जो बड़े नामों के साथ एक शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, उसके बाद कल राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी शहडोल और 2 जगह उनकी सभाएं। प्रियंका गांधी के आने की बात भी चल रही है। प्रधानमंत्री खुद भी शायद 9 तारीख को फिर बालाघाट आएंगे। राजनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो 11 को मध्य प्रदेश आने की उनकी संभावना है। स्मृति ईरानी हाल ही में अभी मध्य प्रदेश से गई। तो कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में बड़े नामों का या बड़े स्टार प्रचारक है उनका अब दौर शुरू हो रहा है, जो शायद चौथे फेज तक लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी। श्रोताओं, हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश के संवाददाता हमारे साथ थे संजीव शर्मा। एक बार लौटते हैं फिर से स्टूडियो में और यहाँ पर रोशन जी आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कितना दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव।
देखिए मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं उसमें से 28 बीजेपी के पास है जी। एक सीट मात्र जो छिंदवाड़ा की है वो कमलनाथ जी के पुत्र हैं नकुल के पास है जी। और इसलिए जो आज प्रधानमंत्री ने जबलपुर का जो एरिया चुना है वो इसीलिए चुना है कि वो छिंदवाड़ा तक उसका संदेश जाए और कोशिश हो रही है कि छिंदवाड़ा की सीट भी बीजेपी ले, क्योंकि इसमें जो टारगेट है कि सभी सीटें जीतने का है बीजेपी का। तो वहाँ बीजेपी की कोशिश है और प्रधानमंत्री अब इसके बाद आज के बाद वो और भी बहुत सारी वहाँ सभाएं करेंगे, बड़े बड़े नेता जाएंगे। लेकिन अब इसमें कांग्रेस के सामने भी चुनौती है जी कि पिछली बार वो मात्र एक सीट जीते थे, अब उसमें कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में वो भी विधानसभा चुनाव जीतने की तरफ थे जी, लेकिन हो गया उल्टा और बीजेपी इतने भारी बहुमत से जीती कि कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इसका असर क्या लोकसभा पर पड़ेगा, देखने वाली बात है जी। Yes, so now we are joined in by Shishu Sharma, our correspondent from Punjab. Shishu Sharma? जी धन्यवाद। या शिशु शर्मा, हमें बताइए पंजाब में क्या गतिविधियां चल रही हैं चुनाव को लेकर। हाँ देखिए, जिस तरह आजकल यहाँ पे जो तापमान है वो तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है वो अभी इतना नहीं बढ़ पाया है। उसका कारण है क्योंकि अभी लगभग 1 महीना है नोटिफिकेशन जारी होने में चुनाव के लिए। तो अभी पार्टियां जो है वो वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही हैं, देख रही हैं कि कौन जो नेता है हमारा साथ है या हमारा विरोध कर रहा है। तो दल बदल का जो दौर है वो भी चल रहा है। फिलहाल जो हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अभी 9 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं और श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी जो अभी तक उन्होंने एक भी सीट के लिए जो है उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो जब तक ये उम्मीदवार घोषित नहीं होते तब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं होगी और उम्मीद है कि अब आने वाले कुछ दिन जो है उनमें ये लोग जो है अपने अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर देंगे। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है वो पूरी तरह सक्रियता से जो है काम कर रहा है और अभी जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से करीब 1.5 करोड़ की जो नकदी है या शराब है, नशीले पदार्थ जो है उसको जो है उन्होंने जो है जब्त किया है पूरे प्रदेश में जो है। और लेकिन इस बार जो चुनाव है वो एक अलग तरह से होंगे क्योंकि कोई भी गठबंधन जो है राज्य में नहीं होगा और ये स्पष्ट है कि बहुकोणीय मुकाबले जो हैं वो सभी 13 संसदीय क्षेत्र जो वहां पे होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, अभी हमारे साथ पंजाब से हमारे संवाददाता शिशु शर्मा शांतल जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। एक बार फिर से स्टूडियो लौटते हैं रोशन जी और समझना चाहेंगे, अभी लगभग 1 महीना यानी अंतिम चरण में वहाँ मतदान होना है 1 जून को। हाँ, कुल मिलाकर क्या आसार लग रहा है वहाँ के? देखिए, वहाँ बीजेपी ने अपनी जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है उसमें आप देखिए कि एक जो सांसद आम आदमी पार्टी के थे सुशील कुमार रिंकू, उनको टिकट दिया है। कांग्रेस से आए अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब, उनकी पत्नी को पंडित को टिकट दिया है जी। और एक कांग्रेस से ही आए हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनको भी टिकट दिया है जी। और जो दिल्ली से सांसद थे हंसराज हंस, उनको भी टिकट दिया है। तो बीजेपी ने तो सोच समझ कर टिकट दिया है जी। और पिछली बार जो सनी देओल थे, क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए तो उनका टिकट कटा। तो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन जो अकाली दल के साथ उनका नहीं हो पाया उसका शायद हो सकता है। लेकिन वहाँ जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस के बीच में तो थोड़ा सा झगड़ा है, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हुए, उसका शायद उनको नुकसान हो सकता है। Thank you so much, Roshan Gaurji, for you having discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable input. Thank you so very much. धन्यवाद।